सौभाग्य से परम पूजनीय स्वामी जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं गीता परिवार सेवी राजेश्वरी दीदी और साधक मधुसूदन भैया, श्रीमय कृष्ण धाम वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दिव्यांग भैया एवं सुधा दीदी से निवेदन करूंगी कि परम पूजनीय स्वामी जी का माला, श्रीफल और शॉल से सत्कार करें। स्वामी जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। And I am standing here like a small diya, a lamp, attempting to gauge the glow of the sun in the sky. Because in the realm of spiritual enlightenment and guidance, one name shines brightly above all: Param Pujya Swami Govind Dev Giriji Maharaj. His devotion to Krishna Paramatma and tireless commitment to impart the sacred teachings of Bhagavad Gita have transformed countless lives. Swamiji has been giving discourses on various Hindu scriptures in Sanskrit, Hindi, Marathi, English, and Gujarati languages. Swamiji's journey is not only about spirituality, it is also about a deep commitment to building a stronger Bharat. He believes in instilling moral values and a sense of pride for the nation, especially among the youth, ensuring they become strong pillars of the country. This vision has driven him to establish numerous institutions dedicated to Vedic value-based education. To name a few, Maharshi Vedavyas Pratishthan, of which Swamiji is the founder president. वेद शिक्षण हमारे ज्ञान का मूल स्रोत बहुत घट रहा था, जिस कारण से स्वामी जी ने वेद विद्यालय की स्थापना की। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 37 वेद विद्यालय है जिसमें बालक वेद अध्ययन कर रहे हैं। स्वामी जी, as a matter of pride for all of us, Swami ji is the treasurer of Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, a responsibility entrusted on him by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Yes, the achievements and milestones in Swami ji's life are numerous. This introduction is just a tip of the iceberg. Swami ji, हम सभी की ओर से आपको शत-शत प्रणाम और स्वागत। In this sequence of I would request Geeta Parivar Sevi Prajakta Didi to introduce Geeta Parivar to everyone. धन्यवाद प्रियांशी दीदी। जय श्री कृष्णा। परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज founded Geeta Parivar in 1986 in Sangamner, Ahmednagar district, Maharashtra. Geeta Parivar established Bal Sanskar Kendra. Their main objective is to encourage students to learn Sanskrit, art traditions and art culture. It's been 37 years for this initiative now, and it has expanded to several other states in India. During the COVID-19 pandemic, Geeta Parivar's offline activities came to a halt. However, the volunteers didn't get discouraged, as their heart always echoed, Ram Kaj Kine Binu Mohi Kaha Mishra, which means there is no rest without completing Lord Rama's work. This motivation of volunteers led to the inception of Learn Gita program. Learn Gita online classes started in June 2020. This new initiative of Geeta Parivar is nothing short of a miracle. It continues to achieve new milestones and spread the awareness of Srimad Bhagavad Gita all over the world. Today, over 1 million of participants spanning all age groups, from children to elderly, from 180 countries have registered this program. More than 10,000 Gita Sevaks contribute day and night to spread the knowledge of Bhagavad Gita. Learn Gita program operate at 4 levels: level 1, level 2, level 3
chapters is taught according to the rules of Sanskrit grammar with Ahad, Anuswar and Visarga. This program itself is a collection of many initiatives. Each month, new batches begin. Gita Maitri programs are conducted in various parts of the country and now even in India, in all over the world. Publications of the Srimad Bhagavad Gita in different languages, Gita classes in jail for prisoners, and organizing various other programs. So, please stay connected with this Gita Parivar as a sadhak or a sevi and contribute to this wonderful cause. Thank you. Jai Shri Krishna. धन्यवाद प्राजक्ता दीदी. Next I would request Geeta Parivar Sevi Piyush Bhaiya to share the formation and introduction of Team 11. जय श्री कृष्ण. सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. अभी स्वामी जी कैलिफोर्निया आए हैं. हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन जो यहाँ की टीम 11 है बे एरिया की, हम चाहते हैं कि स्वामी जी के डिवाइन प्रेजेंस में हम उनका आशीर्वाद लेकर के उसका गठन आज करते हैं. तो आप जल्दी मैं सबको बुलाता हूँ. सबसे पहले राजेश्वरी दीदी, जो कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं, लगातार सेवा दे रही हैं गीता परिवार के अंदर. सभी को साथ लेकर के चलने की इनकी कला है और ये सभी को बहुत प्रेम से रखती हैं. एक तरीके से हमारे लिए पूरे हमारे ग्रुप की माँ समान है. अरे वाह. इसके बाद में हमारे ग्रुप में चारुशीला दीदी. चारुशीला दीदी 18 अध्यायों को पढ़ाती हैं संस्कृत के ग्रामर के साथ में. सही उसका हर प्रकार से उसको पढ़ाने का, 18 अध्यायों को पढ़ाने का इनका अभी भी एल्को दोनों कर रहे हैं. और गीता पथिक में जल्दी ही गीता व्रती हो जाएंगे. गीता पथिक यानी 12 अध्यायों की उन्होंने परीक्षा दे दी है. और उसके बाद में है हमारे बीच में विवेक भैया. इन्होंने गीता पथिक दे दिया है. गीता व्रती इनका पूरे 18 अध्याय इन्होंने अभी कंठस्थ कर लिए हैं. ताली बजाओ. गीता व्रती अभी देने वाले हैं कुछ ही दिनों में. You know the meaning of Shandur? Yes. What is that? Lion. जय श्री राम. फिर है हमारे बीच में कृष्णदास जी भैया. इन्होंने भी गीता पथिक दे दिया है. ये भी गीता व्रती कुछ ही दिनों में देने वाले हैं. और आने वाले समय में हम लोग एकादशी पर गीता पाठ करना शुरू करेंगे. उनको ये लीड करेंगे. उसके बाद में है हमारे बीच में प्राजक्ता दीदी. इन्होंने भी L4 तक पूरा अपना कर लिया है और अभी ये गीता पाठक हैं. यह भी पूरे तरीके से अपनी सेवा टेक टीम में भी देते हैं. उसके बाद में सुषमा दीदी, ये भारत में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थी. अभी इन्होंने L4 तक अपनी कर ली है पढ़ाई और ये भी अभी अपनी गीता को याद करने का इनका और कंठस्थ करने का इनका पूरा प्रयास चालू है. अपनी टीम में पूरा सहयोग करती है. प्रियांशी जी, यह भी अपना L4 कर चुकी हैं. अभी पूरा गीता पाठ में अपना ध्यान दे रही हैं. प्लस ये अपना पूरा संचालन और जो अभी एंकरिंग कर रही हैं वो यही कर रही हैं. बहुत अच्छा भजन गाती हैं. और अंत में मैं भी मौका नहीं छोड़ना चाहता हूँ.
कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसु रीझी करी, कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब। अर्थात सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई, जिससे प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग उसी रस में भीग गए। उसी रस में भिजोने के लिए आज हम सभी के समक्ष परम पूज्य स्वामी जी मौजूद है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस आपसे निवेदन करती हूँ, अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम जगत्प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम विक्रम भूदेव। मेरे सुदूर विद्यमान मेरे परिवार को देख करके मेरा अंतःकरण गदगद हो गया। ये मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा योग वासिष्ठकार कहते हैं। The world is one family, जिनकी मैं रात दिन आराधना करता हूँ। उन ज्ञानेश्वर महाराज का वचन है कि विश्वची माझे घर, सारा संसार मेरा परिवार। उसमें भी गीता को माध्यम बना करके जब हम लोग एकत्रित आते हैं तो हम लोगों का संबंध रक्त के संबंध से भी अधिक गहरा हो जाता है। रक्त का संबंध एक जन्म का होता है, लेकिन भगवान के माध्यम से होने वाला संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए मेरे अत्यंत प्रिय भाई बहनों को यहाँ पर देख करके मैं कितना आनंद अनुभव कर रहा हूँ, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप सब लोग मिलकर के ऑनलाइन एक दूसरे के सानिध्य में आकर के और भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इतना विश्वास रखिए, जीवन में आपको सर्वदा ये लगता रहेगा कि भगवान की मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हुई कि मैं गीता पढ़ लिया, मैंने गीता का अध्ययन कर लिया। मैं उन लोगों को जानता हूं जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक भगवत गीता नहीं पढ़ पाए और जब जवानी के जोश में होश खो करके पैसा कमाने में ही लगे रहे, घर गृहस्थी के काम करने में ही लगे रहे और समय निकल गया और जब गीता की महत्ता ध्यान में आई तो लोगों को लगता है काश हम भी गीता पढ़ पाते हैं। लेकिन कैसा सुखद संयोग है कि मेरे सामने बैठे हुए बड़े लोगों के साथ ये छोटी छोटी कलियां हैं जिनका जीवन अब खिल रहा है और ऐसी खिलती अवस्था में गीता के श्लोकों से उनका मन मस्तिष्क और जीवन जब सुरभित हो जाएगा तो इससे बड़ा वरदान कोई भी नहीं हो सकता है, इसका विश्वास रखिए। कदाचित आप लोगों ने देखा होगा, पिछले सप्ताह मैं जब न्यू जर्सी में था, वहां पर एक 6 वर्ष की छोटी बालिका मेरे पास आई और गीतावती बन करके आई
6 वर्ष की बालिका की मैंने परीक्षा ली और मुझे इतना आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ। परीक्षा लेते लेते मैं थक गया, लेकिन परीक्षा देते भी वो बच्ची नहीं थकी। मित्रों, हम सब लोगों के जीवन भारत माता के साथ जुड़े हुए हैं। गीता परिवार ये ऐसा परिवार है जो 5 सिद्धांतों को अपने साथ लेकर के चलता है। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जब मिले हैं तो मुझे आपको बताना चाहिए। हमारे गीता परिवार का पहला सूत्र है, हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। हमारा जो कार्य है ये सोशल वर्क नहीं है। सोशल वर्क का एक अलग स्तर होता है। हम सब ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के विश्वासी हैं, और हमारे जीवन में हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति यह गीता परिवार का पहला आलम्बन है। गीता परिवार का दूसरा आलम्बन है भगवद गीता। ईश्वर की भक्ति करनी है तो हमें कोई मंत्र चाहिए और कोई शास्त्र चाहिए। विश्वास रखिएगा, भगवद गीता यह कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया सबसे ऊंचा मंत्र है, और भगवद गीता यह भगवान के द्वारा दिया गया सबसे ऊंचा शास्त्र है। सबसे ऊंचा। संसार में कितने ही ग्रंथ हैं, हमारी भारतीय परंपरा में भी कितने ही ग्रंथ हैं, लेकिन विश्वास रखिएगा भगवद गीता जैसा कोई ग्रंथ अब तक हुआ नहीं और आगे होने की संभावना नहीं। अभी तो आप गीता कंठस्थ करने के दौर में है। विवेचन सत्रों को सुनते सुनते आगे बढ़ते बढ़ते जब गीता के अर्थ में आपका प्रवेश होगा, तब आपको अकेले बैठे बैठे भी गीता के श्लोकों के अर्थ का चिंतन करते समय एक्सपीरियंस होगा। वाह, हमने गीता पढ़ी, हम गीता समझ रहे हैं। It's such a beautiful scripture. It's sung by भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने गाई, इसलिए उसको गीता कहते हैं। तो ये गीता हमारा जीवन है। गीता पढ़े, पढ़ाए, आगे गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में। आप लोगों को पता है ये गीता, लर्न गीता के अपने प्रवाह में जो गीता का काम चलता है, उसमें किसी प्रकार के एक भी धेले का लेन देन नहीं है। गीता पढ़ने वाला पढ़ता है, निःशुल्क पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसको भाव जगता है कि मुझे कृतज्ञता से कुछ करना चाहिए। तो हमारे भाई बहन कहते हैं आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा लगता है ना, आपने गीता पढ़ी है ना, अब गीता पढ़ाओ। पढ़ना, बड़ों से पढ़ना, छोटों को पढ़ाना और जीवन में लाने का प्रयास करना, ये गीता परिवार का दूसरा सूत्र है। गीता परिवार का तीसरा सूत्र है भारत माता। हम संसार में कहीं पर भी रहें, लेकिन इस बात को भूले नहीं कि हम भारतीय संस्कृति के सैनिक हैं। हम भारतीय संस्कृति के अंश हैं। हम भारतीय संस्कृति के बालक हैं, और इसलिए इस भारत माता ने जो कुछ हमें दिया है, हमारे पूर्वजों को कुछ दिया है, और नहीं सारे संसार को जो प्रकाश ज्ञान का दिया है वो अद्भुत है। उस भारत माता का कुछ न कुछ ऋण हमको चुकाना चाहिए। इसलिए हम भारत माता की भक्ति करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, जहां पर भी आप हैं, आप गुजराती है कि मराठी है कि उत्तर प्रदेश के हैं कि तमिलनाडु के हैं, डजंट मैटर, आप भारत के हैं और आप हिंदू है, इस बात को भूलना है। गीता परिवार का चौथा सूत्र है विज्ञान दृष्टि। हम लोग विज्ञान के युग में रहते हैं, इसलिए हम अंध होकर के चमत्कारों के विश्वासी और
दकियानुसी धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं। विज्ञान सम्मत जो कुछ भी है उसको हम ग्रहण करते हैं और इन सारी बातों का एकत्रित रूप हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद में। और इसलिए स्वामी विवेकानंद नॉट द पर्सनैलिटी बट एज एन आइडियोलॉजी, एज थॉट्स, हम उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि स्वामी जी के जीवन में पुरातन और नूतन इसका संगम है। स्वामी जी के जीवन में पश्चिम और पूर्व इसका संगम है। स्वामी जी के जीवन में स्पिरिचुअलिटी एंड नेशनैलिटी इन दोनों का संगम है। इसलिए सर्वदा उनके जीवन का अध्ययन करना चाहिए, उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। हम लोगों के सामने ये 5 सूत्र सर्वदा रहने चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी भी इन 5 सूत्रों के साथ समझौता करने का प्रसंग नहीं आएगा। और जो इन 5 सूत्रों को लेकर के चलेगा उसके जीवन में कभी पछतावा करने का भी क्षण नहीं आएगा। जीवन एक आनंद यात्रा बनेगी, वह आपकी आनंद यात्रा बने। आप जिसके सहवास में आ जाए उसको ऐसे लगना चाहिए, यस आई एम फॉर्चुनेट दैट I have got the company of this member of गीता परिवार। गीता परिवार का हर सदस्य ऐसा हो जाना चाहिए कि उसके सानिध्य को प्राप्त करके सब लोगों को धन्यता की अनुभूति होने लग जाए। ऐसा जीवन आपका बने, इसमें आपके जीवन की सफलता है, सार्थकता है, समाज का कल्याण है और पूरे विश्व का मांगल्य है। हम लोग इस समय बहुत अल्प समय के लिए मिले हैं, लेकिन मेरा विश्वास है हम फिर एक बार मिलेंगे, अधिक समय के लिए मिलेंगे। सबके साथ व्यक्तिगत परिचय मैं करूंगा और हम मिलकर के अपने इस परिवार को बढ़ाते जाएंगे, इस परिवार का विकास करते जाएंगे। हम लोग गीता पढ़ने के लिए ही केवल एकत्र नहीं आवे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो, क्योंकि गीता ने हम लोगों को यह सिखाया है, सर्वभूत हितेरताः, सबके लिए कुछ मुझे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये सारे भाव आपके जीवन में आते रहेंगे और आपके सामने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहेंगे। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्भूतिर् ध्रुवानीतिर्भुतिर्भवः। योगेश्वर कृष्ण ये ब्रेन फिटनेस के सिंबल है और धनुर्धर पार्थ बॉडी फिटनेस के है। इसलिए आपको बॉडी फिटनेस के साथ ब्रेन फिटनेस रखना चाहिए और सोशल फिटनेस रखने के लिए गीता परिवार में निरंतर आते रहना चाहिए। तो हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन आनंद यात्रा बन जाएगा। वो आनंद यात्रा बने और उसमें हमारी सेवा कहीं न कहीं सार्थक हो जाए, इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए करता हूँ, आप सबके लिए करता हूँ, आप सबको मेरे भाई बहन मान करके करता हूँ और यह हमारा संपर्क निरंतर बना रहे। यह बात ध्यान रखना, मैं गीता परिवार में था ऐसा नहीं कहना, मैं गीता हमारे परिवार की विशेषता है। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर एंट्री के लिए डोर है, एग्जिट के लिए ऐसा हमारा ये डिवाइन फैमिली, यह दैवी परिवार है। आप सबसे मिलकर के बहुत आनंद हुआ। आप सबके लिए शुभकामना, सबका अभिनंदन। On behalf of Gita Parivar USA, I am deeply honored and want to express our sincere gratitude to all of you for making our Sneha Milan such a resounding success. We are especially grateful to Pujya Swamiji, Shri Govind Dev Giriji Maharaj for gracing us with their presence and presiding over this auspicious event. परम पूज्य स्वामी जी के प्रत्यक्ष दर्शन एवं आशीर्वाद के हम सदा से ही अभिलाषी तो रहे ही हैं, पर उन्होंने आज अपने बिजी स्केड्यूल से यूएसए गीता स्नेह मिलन को प्रायोरिटी दी। यह हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। We are also deeply
without any hassle. We also express our sincere gratitude to our respected Ashu Bhaiya, who initiated the idea of organizing USS Snehamilan, and to the respected Sanjay Bhaiya for inspiring us throughout this process. We are equally grateful to our dedicated team of volunteers, Charushila Didi, Krupa Didi, Madhusudan Bhaiya, Prajakta Didi, Piyush Bhaiya, Rajeshwari Didi, Shardul Bhaiya, Shubham Bhaiya, Shushma Didi, Sudha Didi, Sumera Didi, Vivek Bhaiya, Krishna Bhaiya for their flawless management. Their hard work and dedication have been truly exemplary. Our special thanks to the International Working President of Geeta Parivar, respected Ashu Bhaiya, the International Program Coordinator, respected Rupal Shukla Didi, and Geeta Parivar USA President, respected Vijaya Didi. विजया दीदी पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस फोन पर हमसे बात कर रही है, हमें गाइड कर रही है. स्पेशल थैंक्स टू हर who guided us in organizing this event, and special thanks to Gautam Bhaiya and their team as well. Finally, मैं हमारे कान्हा जी को हम सबकी तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना भाग्यशाली बनाया कि हम सभी स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी और गीता परिवार से जुड़ सके. बहुत-बहुत धन्यवाद. Now let's conclude this program and do Prarthana with Geeta Parivar Sevi Krupa Didi. Also, please stay with us. After this Prarthana, we will recite Hanuman Chalisa together. वासुदेवं व्रजप्रियं